everyone, welcome back. In this particular video, we would be covering 20 sample sure questions, or let's say must do questions for your CUT 2023 examinations. And the topic would be, the segment would be quantitative aptitude. इससे पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट कर लिया है, wherein we have discussed around 25 questions. In this, we'd be covering 20 questions from the quantitative aptitude. काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है because we have picked so many questions from different topics. All right, let's start. Also, you know how you should be tackling these sessions. आपको हमेशा एक पेन एंड पेपर रखना है. Take these as practice sessions, wherein with every question that you see, pause the video, try to do it on your own, and then look out for the solution. That is how you should be viewing these videos. All right, chalo, let's start with the first one. Let's see, what do we have here? In a 200-meter race, Sailesh beats Anjali by 35 meters or 7 seconds. What is Sailesh's time over the course? That is, how much time would Sailesh take to cover a distance of 200 meters? It's a question based on the topic races and games, which is part of your time, speed and distance, TSD. All right, let's see how do we start with this. देखो, there's a 200-meter race मान लो, given है. Sailesh beats Anjali. Who's the winner? In this case, the clear-cut winner is Sailesh. All right, and since he is beating Anjali, so Anjali would be covering less than 200 meters, and somewhere around here would be Anjali. And what is this gap? This gap is of 35 meters. So what is the position of Anjali? So subtract 35 from 200, that would be 165 meters. So Sailesh is at 200 meters while Anjali is at 165 meters, beating with a gap of 35 meters. Okay. Also it says, ये जो gap है, ये कवर हो रहा है 7 सेकेंड्स में, है ना? सोच के देखो. Sailesh is beating the other person, his opponent, by 7 seconds, which means Sailesh takes 7 seconds less. तो अंजलि को ये 35 meters कवर करने में 7 seconds लगेंगे. So can we have the speed for Anjali? Speed of Anjali would be, distance here is 35 meters और ये distance cover करने में उसे 7 seconds लगेंगे. So naturally it is 5 meters per second. This is the speed of Anjali. Now, in order to cover 200 meters, how much time would Anjali take? Time taken by Anjali would be 200 meters upon 5 meter per second. So this is 40 seconds. Now think of it. Anjali is losing the race and she takes 40 seconds to complete the race, right? Naturally, and Sailesh is beating this person by 7 seconds. So complete answer would be, Sailesh would only take time of Anjali minus 7 seconds. He would be taking 7 seconds less. So time of Anjali is 40 seconds minus 7 seconds. कितने आ गए ये? 33 seconds, and that is my answer. Option number C. So this is based on the concept of races and games. Alright, ये basic question है, आप इसे और भी आराम से कर सकते हो. ये because मैं आपको ये questions explain कर रहा हूँ. I feel कि most of you are not very thorough with the concept, इसलिए मैं इतनी explanation के साथ कर रहा हूँ. Otherwise अगर आपको ये question attempt करना, आपको यहाँ पे दिख रहा है 35 meters का gap है और ये gap 7 seconds में fulfill होता है, तो you will start with 35 by 7, which is 5 meter per second. Speed of Anjali 200 मीटर करने में इसे कितना टाइम लगेगा? 40, और Sailesh बीट करता है 7 सेकेंड से, माइनस 7, दैट इज 33. दैट इज हाउ. नो नीड टू राइट एवरीथिंग हियर. वो नॉर्मल कैलकुलेशन, वंस यू आर गुड विद द कॉन्सेप्ट, एनी वन हु इज गुड विद द कॉन्सेप्ट वुड बी सॉल्विंग इट इन दैट मैनर. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट. ऑब्जेक्टिव हियर इज कि अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन या इस
टॉपिक को भी कवर नहीं किया होगा, तो मे बी विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए. दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the remainder when we have this number multiplied with the other number, then we multiplied with the other number, and this as a whole is divided by 4? तो मेरे पास रिमाइंडर क्या होगा बताओ. देखो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या बोलता है. इफ यू रिमेंबर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, इट सेज बीट एनी वैल्यू, कोई भी कितना बड़ा डिजिट हो, कितने डिजिट्स के नंबर हो, let's say it's a 4-digit number or a 5-digit or a 6-digit number, I only focus on the last 2 digits. All right, I focus on the last 2 digits of the number. और ये अगर 4 से डिविजिबल है तो मेरा नंबर 4 से डिविजिबल है, या फिर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 है तो ये मेरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा. दैट इज द रूल फॉर 4. राइट, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर. तो मैं इस पूरे नंबर को, जैसे ये नंबर है 9875347 इंटू 7435789 इंटू 5789743, ठीक है. मैं इसको बस ब्रेक करूंगा इसके लास्ट 2 डिजिट्स में, बस पूरे नंबर की काम ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको. डिवाइडिंग इट बाय 4. चलो मुझे रिमाइंडर्स बोलते चलो. All the 3 numbers, what are the possible remainders? 47 by 4, we get the remainder as 3 into 89 by 4, we get the remainder as 1. 43 by 4, we get the remainder again as 3 divided by 4. How much? 3 into 1 into 3 is 9 by 4. How much is the remainder? Remainder in this case is 1, and that is how you break down a larger number by dividing the number with whatever divisor is given. और इस तरीके से देखो मैंने इस पर्टिकुलर नंबर को एक छोटे से नंबर में ब्रेक डाउन कर लिया. ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या है, आप इस नंबर को डिवाइजर से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसे लिखते चलो. दैट इज हाउ यू ऑलवेज ब्रेक डाउन अ लार्जर नंबर इनटू स्मॉलर वैल्यूज, हमेशा. दैट इज हाउ यू डू इट फॉर एनी क्वेश्चन. ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 है, जो भी डिवाइजर होगा, मान लो यहाँ पे 5 होता, लेट्स से द डिवाइजर इज 5, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे पहले रिमाइंडर 2 आएगा, फिर रिमाइंडर कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, फिर रिमाइंडर आ रहे हैं 3. दिस इज हाउ आई शुड हैव प्रोसीडेड फर्दर. ये तरीका है, एक बड़े वैल्यू को, बेस को डिवाइजर से डिवाइड करो, वट एवर इज द रिमाइंडर दैट बिकम्स द होल वैल्यू. इसी तरीके से आप किसी भी बड़े वैल्यू को ब्रेक डाउन कर सकते हो. Clear? The divisibility rule of 4 is also clear. चलो moving forward. Next question. 15 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the same field working 8 hours a day? Time and work अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है ये फेमस MDH मसाला फॉर्मूला है ना. सोच के बताओ, हाउ डू यू यूज MDH मसाला फॉर्मूला. टैगलाइन क्या है MDH का, MDH, तो ये बन जाएगा M1D1H1 M2D2H2. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज. M1 की वैल्यू क्या है, M हियर स्टैंड्स फॉर मैन, मशीन, विमेन, चिल्ड्रन, कोई भी इंसान जो काम कर रहा हो. और जब वो काम करता है तो टाइम कैन बी डिवाइडेड एज डेज एंड आवर्स. क्योंकि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं तो मान लो ये वर्क डन 1 बन रहा है M1D1H1 का, ये M2D2H2 का वर्क डन 2 बन रहा है, दोनों ही बराबर है इसलिए कैंसिल हो रहे हैं और ये इक्वेट हो रहे हैं. दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ लेट्स यूज द वैल्यूज. M1 की वैल्यू है 15, D1 की वैल्यू है 16, H1 की वैल्यू है 9. ओके, व्हाट आर द वैल्यूज फॉर M2, D2 एंड H2. लेट्स सी. M2 की वैल्यू है 18 लोग वर्किंग 8 आवर्स, H2 की वैल्यू है 8 आवर्स. मुझे पता करना है हाउ मेनी डेज, D2 क्वेश्चन मार्क है. लेट्स यूज द वैल्यूज. 15 इंटू 16 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इंटू D2 इंटू 8. कैन वी सिंप्लीफाई दिस. देखो 9 और ये 2 चला गया, 8 2s आर 16, ये भी चला गया. D2 की वैल्यू सिंपली यहाँ से आ गई
15. So 15 days is what we have as our answer. All right. देखो, क्योंकि हमने MDH मसाला फॉर्मूला को भी डिस्कस करा है, तो इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन होगा उसे भी लिख लो, सो दैट अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आ जाए इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर पाओ. क्या बनेगा ये? M1D1H1 इज इक्वल टू वर्क डन 1, M2D2H2 इज इक्वल टू वर्क डन 2. तो वर्क डन 1 यहाँ पे आ जाएगा, वर्क डन 2 इसके नीचे आ जाएगा. यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में कोई बातें नहीं हो रही है. इसका मतलब है कि whoever इज डूइंग द वर्क आर इक्वली एफिशिएंट. बट अगर एफिशिएंसी डिफरेंट है तो आप इस तरीके से एफिशिएंसी रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो. एफिशिएंसी का मतलब क्या? लेट्स से फर्स्ट सेट ऑफ पीपल वी आर वर्किंग एट 90% एफिशिएंसी, द अदर वन एट 70% एफिशिएंसी. तो 70 यहाँ, 90 यहाँ, ऐसे. क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड. आई फील आपको ड्रिल पता है. क्या है ड्रिल? You have to pause the video at the start of the slide, do it on your own, and then maybe go or check what we are doing here. That is how you should be solving these questions. That is how you should be viewing these videos. अगर ऐसे नहीं देख रहे हो, अगर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हो तो मत देखो. That is the main objective, कि अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करना है तो कोई फ़ायदा नहीं है. क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, एक एटलीस्ट रफ शीट रखो अपने पास एंड स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस. चलो नेक्स्ट वन वी हैव द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ एंड इज inscribed in a circle is D. The diagonal is D. ये गिवन है. The area of the rectangle is how much? आपसे एरिया पूछा है और डायगोनल कितने गिवन है? D के बराबर, स्मॉल d के बराबर. ओके, अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. वी हैव अ सर्कल and we have a rectangle here. Okay, now according to the given data, ये अगर B है, अगर मैं बोलूँ इसको as B breadth, तो लेंथ मेरे लिए 2B के बराबर है. तो this is 2B. All right, now tell me what is the diameter given. This is equal to small d. अब if you look at this carefully, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहे हैं और ये ट्रायंगल्स कैसे हैं? राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज आपको पता है ये रूल, ये 90 डिग्रीज होते हैं, राइट? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूज मुझे दिख रहा है एज d. So d square would be simply b square plus 2b whole square. Now what is the value of d square? It is b square plus 4b square. So d square is finally 5b square. Okay, from here I can also say b square is equal to d square diagonal square upon 5. This is my first observation here. I guess यहाँ तक आप follow कर पा रहे हो. Now, how do you calculate the area of the rectangle? The area of the rectangle is given by length into breadth. So it is length into breadth. What is the length here? The length is 2b. and the breadth is b, so this becomes 2b square. और b square की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो पुट कर दो 2 into d square by 5. This is my area. Do we have this as one of the options? 4d square कट गया, 2d square by 3 कट गया, 3d square कट गया, 2d square by 5. ये स्क्वायर वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट. आई फील दिस इज क्लियर. हाँ या ना, फॉलो कर पा रहे हो? बेसिक है यहाँ पे. चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन. द 15th term of an arithmetic progression or AP is 15 or is 5. If the smallest term has a value anywhere between -30 and -20, what is the range of values between which the 21st term lies?
देखो nth टर्म ऑफ एन AP, कोई भी टर्म, फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म ऑफ एन AP इज गिवन बाय द फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर आपको पता है a क्या है, n क्या है, d क्या है. a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, एनी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स हियर, nth टर्म मतलब सेवेंथ अगर वैल्यू है तो सेवेंथ टर्म के बारे में बात हो रही है. ओके, वी हैव द 15th टर्म वैल्यू एज समथिंग. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. तो 15th टर्म के लिए क्या हो जाएगा, इट इज a प्लस 15 माइनस वन इंटू डी. 15 टर्म की वैल्यू है 5, so this becomes a plus 14d is equal to 5. We have a relation here in terms of ad. So a plus 14d is equal to 5, ये मुझे पता है. चलो अब मुझे देखना है -30 और -20 के बीच में लाई कर रहा है, तो पहले आप a को ले लो -30 और देखो इससे क्या सोल्यूशन बन रहा है. फिर दूसरे केस में आपने a को रख लेना है -20. चलो सॉल्व करते हैं. a इज इक्वल टू -30, सो पुटिंग दिस वैल्यूज हियर वी गेट 5 इज इक्वल टू -30 प्लस 14d. सो 30 इधर आ जाएगा, 35 इज इक्वल टू 14d और d इज इक्वल टू 35/14. ये 7 से अगर आप कट करते हो तो ये 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स. d की वैल्यू आ गई आपके लिए कितनी बताओ, देख के. अरे यार दिख तो रहा है, 5/2 है. चलो नाउ अगर मैं 21st टर्म की बात करूं यूजिंग एज वैल्यू एज -30, तो क्या आ रहा है, लेट्स सॉल्व. 21st टर्म तो ये बनेगा a प्लस 21 माइनस 1 विच इज़ 20d. a की वैल्यू मुझे पता है क्या रखनी है, a की वैल्यू मुझे रखनी है -30 और d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, d की वैल्यू अभी आई है इसके केस में 5/2. सो दिस इज -30 प्लस 50, वी गेट द रिजल्ट एज 20 पॉजिटिव. क्या मेरे पास 20 पॉजिटिव कहीं पे भी ऑप्शन में है? यस, वी डू हैव 20 पॉजिटिव हियर. तो ये मेरा आंसर बन सकता है. चलो इसे और चेक करते हैं, नेक्स्ट वाले से सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से. ए की वैल्यू है -20, तो 5 इज इक्वल टू -20 प्लस 14d. ऑलराइट, यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यूज बन के आ रहे हैं, 25 इज इक्वल टू 14d, therefore d is equal to 25/14. ये d की वैल्यू आ गई. ओके, अब इसे यूज करते हैं अपने लोग फॉर फाइंडिंग द 21st टर्म, जहाँ पे मैं a की वैल्यू क्या रखूंगा, कीपिंग a एज -20. सो a प्लस 20d, दैट वुड बी -20 प्लस 20 इंटू 25/14. इनमें से अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे, -1 प्लस 25/14. तो देखो ये कितने बन गए, 20 इंटू 25 -1 है, 25/14 -1 है, इसका मतलब है 25 माइनस 14. तो दिस बिकम्स 11/14. सो हाउ मच इज दिस वैल्यू, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इज 10, दिस इज 7. 110/7 which is 1 time and then you have 40, तो 5 times 5/7, 15 5/7 is the second value. क्या 15 5/7 इसके साथ है? हाँ बिल्कुल है. तो ये मेरे लिए करेक्ट आंसर बन गया. आई फील दिस इज क्लियर. चलो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया. वी हैव डन, देखो 5 क्वेश्चन हमने अभी तक कवर कर लिए. Moving on to the next question. 10 cars are parked in a row. What is the probability that there are exactly 5 cars between two particular cars? तो probability plus permutation दोनों के क्वेश्चन चाहिए.
Alright, let's see what can be done here. 10 cars हैं, तो let's draw these positioning 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactly 5 cars between 2 particular cars. तो ये कहाँ कहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, एक बार ये ऐसे समझो. अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को कंसिडर करूँ और मैं 5 इनमें रख दूँ, 1, 2, 3, 4, 5, then this is the 7th position. So now they can be placed. Next, naturally second position could be 2 and 8. Next could be 3 and 9, and the next one could be 4th and the 10th position. इतने पोजीशन में. ऑल्सो एक और चीज़, अगर यहाँ पे 7th वाला आ जाए, यहाँ पे 1 वाला आ जाए, वो भी एक नए परमुटेशन को की तरफ लेके जाएगा. व्हाट आर परमुटेशन? परमुटेशंस आर नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है, इन विच ऑर्डर डज नॉट मैटर और डज मैटर. थिंक ऑफ इट, जैसे अगर मैं बोलूँ 1 2 3, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेट्स से यू राइट 2 1 3, तो एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा. तो ऑर्डर डज मैटर हियर, इन विच द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज मैटर. अगर आपने ऑर्डर चेंज करा तो एक नया अरेंजमेंट आ जाएगा. जैसे अगर मैं मान लो 3 1 2 लिख दूँ तो एक नया अरेंजमेंट बन गया. इसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ, तो इसमें अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, लेट्स से यू राइट 3 2 1, तो इनमें एलिमेंट्स तो उतना ही है ना, मतलब कॉम्बिनेशन तो वही है. इसका मतलब ऑर्डर से फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन. अगर ऑर्डर से फ़र्क पड़ रहा है तो दैट इज़ अरेंजमेंट, एंड अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूँगा? परमुटेशन. कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डज नॉट मैटर, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर्स. मतलब यहाँ पे मैं 7th वाले कार को यहाँ पे रख सकता हूँ और फर्स्ट वाले को यहाँ पे रख सकता हूँ, तो एक नया ऑर्डर बनेगा. तो इस तरीके से ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में 2 वेज में अरेंज हो सकते हैं. कितने हैं? 4 हैं. 4 इंटू 2 फैक्टोरियल वेज. इससे सिर्फ 2 सीट्स आपके रेस्पेक्टिव जोन में बन रहे हैं. अगर मैं किसी भी जोन की बात करूं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट की बात करूं, तो कितने कार्स आपके पास बचते हैं? 8 कार्स बचते हैं. और देखो आपके पास स्पेस भी 8 बच रहे हैं, तो वो आपस में अरेंज हो सकते हैं इनटू n फैक्टोरियल वेज, विच इज़ 8 फैक्टोरियल वेज. अब ये जब मैंने कर दिया तो इससे सारे सीट्स फिल हो गए हैं, सारे सीट्स फिल हो गए रेस्पेक्टिव रोज में. तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल अरेंजमेंट बन चुके हैं. अब मुझे क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो टोटल अरेंजमेंट कैसे बनते हैं? इट इज़ n फैक्टोरियल. तो टोटल मेरे पास 10 कार्स हैं, दे कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज. डू वी हैव दिस एज वन ऑफ द ऑप्शन? चलिए देखते हैं. Okay, 4 into 2 factorial is simply 8, and 8 into 8 factorial upon 10 factorial. ये है मेरे पास इन ऑप्शन नंबर C. 8 into 8 factorial upon 10 factorial. Please work on the basics of permutation and combination. तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने बेसिक्स पता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The sides of a cuboid increase by 20%. By what percentage does its volume increase? देखो, वॉल्यूम का मतलब है 3 साइड्स की बात हो रही है. अगर सरफेस एरिया होता तो मैं इसे 2 बारी करता. मतलब आपको पता है, ये हमने बहुत बारी डिस्कस करा है, बहुत सारे वीडियोस में बात करी, क्लासेस में भी बहुत बारी बोलते रहता हूँ. इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए. इनमें मैं सक्सेसिव चेंज और नेट चेंज के बारे में बात करूंगा. 2 एलिमेंट के लिए नेट चेंज की फॉर्मूला क्या है? यस, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100. बस यहाँ पे आपको एक चीज़ में केयरफुल रहना होता है कि जब भी आप a और b को कंसिडर कर रहे हो तो इनके लिए रेस्पेक्टिव साइंस सही होने चाहिए. रेस्पेक्टिव साइंस का मतलब क्या है? मतलब दे कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे अगर मुझे ग्रोथ दिखाना है, जैसे दीज साइड्स आर इंक्रीजिंग, तो मैं पॉजिटिव के साथ इसे अज्यूम करूंगा ना. अगर मैं नेगेटिव के साथ 20 लिख रहा हूँ, इट मीन्स आई एम शोइंग देयर इज अ डिक्रीमेंट. तो अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव मुझे इंडिकेट करनी है, जैसे प्रॉफिट
इंक्रीमेंट और इंक्रीज, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पॉजिटिव साइन। और ग्रोथ, कहीं पे भी अगर मुझे लॉस दिखाना है, डिक्रीज दिखाना है और डिक्रीमेंट दिखाना है और मे बी डिस्काउंट दिखाना है, तो in order to indicate these things I'll be using a negative sign before the actual values. चलिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है these sides are increased by 20, तो A की वैल्यू भी है +20 और B की वैल्यू भी है +20। चलिए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100, 40 प्लस 10 कट गया +4, इट इज़ 44%। देखो अभी दो साइड्स कवर हुए हैं, एक और बारी होगा ना फॉर वॉल्यूम। अभी इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम हटा के सरफेस एरिया लिख दूँ तो ये मेरा आंसर बन गया है 44%। एरिया पे मैं 2 एलिमेंट्स पे बात करूंगा, जब वॉल्यूम आ जाएगा तो मैं 3 एलिमेंट्स पे बात करूंगा। ये चीज़ क्लियर है। 44% भी इसका आंसर होगा कब, जब वॉल्यूम नहीं सरफेस एरिया पूछेगा। अभी मेरे से वॉल्यूम पूछ रहा है तो मुझे इसी चीज़ को एक बारी और रिपीट करना पड़ेगा। तो 44 आ गया 2 एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट एक सी एलिमेंट ले लो, तो 44 + 20 + 44 × 20/100। 44 + 20 is how much? 64 प्लस 10 काट दो, दिस इज 88/10 और 8.8 विच इज 72.8%। ये वॉल्यूम के चेंजेस है, इसलिए मुझे 3 बारी करना पड़ा। तो एट अ टाइम यू यूज 2 एलिमेंट, एक रिजल्ट आ गया और फिर तीसरे वाले को उससे कंपेयर कर लो। दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। क्लियर है? 2-3 चीज़ों पे बात करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसे बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है। क्लासेस में तो मैंने इसको कितनी बार ही बता दिया है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। चलो नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव? 6 bells commence tolling together at an interval of 2, 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. In 6 hours of time frame, how many times do they toll together? देखो ऐसे जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं, टोल टुगेदर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मुझे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा गिवन वैल्यूज का। तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये जो भी वैल्यू आएगा, जितने भी सेकंड्स आएंगे या मिनट जो भी आ रहा है, उतने पे ये हर बारी साथ में टोल करेंगे। दैट इज व्हाट दिस मीन्स। उतने पे ये हर बारी साथ में रिंग करेंगे। तो इनका एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे जाते हैं। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं 2 पे पावर 1 लिख सकता हूँ। 3 को मैं 3 पे पावर 1 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से 6 को मैं 3 पे पावर 1 × 2 पे पावर 1 लिख सकता हूँ। 9 को मैं 3 पे स्क्वायर लिख सकता हूँ। 12 को मैं 4 × 3 विच इज़ 2 स्क्वायर × 3। 15 को मैं 5 पे पावर 1 × 3 पे पावर 1। अब एलसीएम के लिए क्या करना होता है? जितने भी वैल्यूज़ हैं उसके हाईएस्ट फॉर्म को लिख दो। जैसे 2 से स्टार्ट करो। 2 का हाईएस्ट फॉर्म क्या दिख रहा है? 2 स्क्वायर × 3 के लिए 3 स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, तो 5 पे पावर 1 ही है, तो इसे रहने दो। सो दिस इज 4 × 9 × 5, 180 सेकेंड्स, है ना? 180 सेकेंड्स पे ये साथ में फिर से रिंग करेंगे ऑल टुगेदर। 180 सेकेंड्स का मतलब क्या है? 3 मिनट्स। आपसे क्या पूछा जा रहा है? इन अ टाइम स्पैन ऑफ 6 hours। तो देखो यार, इन 1 hour कितनी बार ये रिंग करेंगे? 3 मिनट 3 मिनट 6, 1 hour का मतलब है 60 मिनट्स। तो क्या बन जाएगा? 60/3 विच इज 20 टाइम्स। तो इन 6 hours कितनी बारी होगा? 20 × 6 विच इज 120 टाइम्स। आई फील दिस इज क्लियर। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप एलसीएम ले लो, आपका आधा काम वहीं पे बन जाता है। अगर मान लो 3 लोग इस तरीके से चल रहे हैं, इतना टाइम लगता है इन्हें चलने में, ये करने में, दैट इज अगेन हाउ यू फाइंड दीज थिंग्स। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द 9th क्वेश्चन। 2 cards are drawn from a pack of well shuffled cards. Find the probability that one is a club and the other is an ace. देखो
पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स, हमेशा ध्यान रखना, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 52 कार्ड्स। और कार्ड्स वाले क्वेश्चन है वेदर यू प्ले कार्ड्स और यू डोंट, आपसे ये अजम्पशन मान लिया जाता है क्वेश्चन सेटर का कि आपको कार्ड्स के प्रॉपर्टीज पता है, दैट यू नो व्हाट टाइप ऑफ कार्ड्स आर प्रेजेंट इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बिकॉज यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ अ क्लब, व्हाट इज़ एन एस, तो आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। सिंपल सी बात ये है। तो सबसे पहले वीड बी टॉकिंग अबाउट दीज 52 कार्ड्स, बिकॉज ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे, बट लेट्स लर्न कि क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व है जल्दी से। आई जस्ट बी क्विक हियर। 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 colors, red and black. Red contains 26 red, and then we have naturally 26 black. Okay, 26 रेड कलर्स है मेरे पास, जिसको मैं अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, डायमंड एंड हार्ट, और ब्लैक को मैं डिवाइड करता हूँ इंटू 2 कैटेगरीज, क्लब एंड स्पेड। देखो क्लब यहाँ पे आ गया, तो कितने कितने होने चाहिए सबके, 13 13 13 एंड 13। नेक्स्ट वी हैव लेट्स से एस, ए से डिनोट होता है कितने हैं, देख लो 1 1 1 1। ओके, नेक्स्ट वी हैव नंबर्ड कार्ड्स, दीज आर फ्रॉम मार्क्ड फ्रॉम 2 to 10। तो कितने नंबर्ड कार्ड बन रहे हैं, 9 ईच। Okay, then we have face cards starting with king, queen and jack. Jack is also known as knave. There's no joker here. 1 1, queen also 1 1, king, jack also 1 1 and black also. So in total they are 4 each. Alright, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मुझसे पूछा जा रहा है क्लब, ये वाला पार्ट, एंड एस, ये वाला, 4 है एस, क्लियरली विजिबल है अभी आपको। नाउ यू हैव अ रफ आइडिया ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, व्हाट कैन बी डन हियर। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, एक नहीं 2 कार्ड ड्रॉ हो रहे हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, देखो एक कार्ड होता तो ये बहुत ही सिंपल बन जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। क्योंकि 2 कार्ड हैं तो मुझे यहाँ पे हल्का सा केयरफुल रहना पड़ेगा, मुझे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। चलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज अ क्लब एंड दी अदर इज एन एस। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है ना, उसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि जब मैं क्लब की बात करता हूँ 13 कार्ड्स, इट ऑल्सो कंटेन्स अ कार्ड विच इज एन एस। तो मुझे यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज पे काम करना होगा। लेट्स से द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज पॉसिबिलिटी नंबर 1, जहाँ पे मैं इन क्लब में से ही पिक कर रहा हूँ, इन 13 कार्ड्स में से ही पिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक नॉन एस कार्ड पिक कर रहा हूं। क्लियर? तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12C1 और लेट्स से 13C1, और नेक्स्ट वाला जो कार्ड है वो कार्ड है हुआ मेरा एस, तो 1C1। यहाँ तक आप फॉलो कर पा रहे हो, हाँ या ना? सोच के बताओ, देख के बताओ, क्या आप ये फॉलो कर पा रहे हो? दूसरा पॉसिबिलिटी मैं क्या बना सकता हूँ यहाँ पे, और लेट्स देखो, ध्यान दो, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार के लिए आप ध्यान दो, इसे समझो। मैं यहाँ पे आपको अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी और फाइनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज पॉसिबिलिटी 1 प्लस पॉसिबिलिटी 2 वाली। और प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो दोनों ही केसेस में मैं 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स पिक कर रहा हूँ? मैं 2 कार्ड्स पिक कर रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी 1 की बात करूँ या पॉसिबिलिटी 2 की बात करूँ, दोनों ही केसेस में मैं 52 कार्ड्स तो 52 कार्ड में से ही 2 कार्ड पिक कर रहा हूँ।
दिस इज हाउ यू पिक द टोटल वैल्यू। अब चलो फेवरेबल पे बात कर लेते हैं दोनों केसेस में कि क्या हो रहा है। चलो पहले वाले में मैं ऐसे कार्ड को पिक कर रहा हूं दैट इज एनी क्लब कार्ड, मतलब कोई भी एक क्लब कार्ड है। तो कोई भी एक क्लब कार्ड अगर मुझे पिक करना है, कितने मेरे पास क्लब के कार्ड्स हैं? 13 हैं, तो 13C1। अच्छा, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा हैज टू बी अ नॉन क्लब एस। नॉन क्लब एस का मतलब क्या है? इनमें से कोई एस। तो कितने हैं ऐसे एस? 3 हैं, तो 3C1। ना नेक्स्ट वाले सिनारियो में जो मैं एस पिक करूंगा वो मैं इसमें से ही एस भी पिक कर लूंगा। तो अगर मैं इसमें से ही एस पिक कर रहा हूँ, कैसे, कितने वेज में मैं कर सकता हूँ? मुझे दिख रहा है एक ही एस है, 1C1। बाकी कितने कार्ड्स बच गए मेरे पास? मेरे पास बच गए 12 कार्ड्स ऑफ द क्लब, तो 12C1। क्लियर है? चलो अब इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 13C1 इज 13, 3C1 इज 3 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2 प्लस 1C1 is 1, 12C1 is 12 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 13 इंटू 3 इज 39 प्लस 2 इंटू 12 विच इज 24 अपॉन 52 इंटू 51, 52 इंटू 51। फर्दर 39 इंटू 2 78, 78 और 24, 12 इंटू 2 24, कितने बन गए? 78 और 24 बन जाएंगे आपके 102 बटे 52 इंटू 51। 51 दो बारी काट देगा, तो दिस इज 1/26 एज आर आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट हियर। क्लियर है? फॉलो कर पा रहे हो? कोई दिक्कत यहाँ पे? देखो मैं जानबूझ के विथ एवरी क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्सेप्ट एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिससे आप अगर इस वीडियो को एक बार भी देखते हो तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जा रही हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं भी पढ़ के रखी है तो कहीं ना कहीं आपको उसमें हेल्प मिल जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, Abhishek writes 100 whole numbers from 100 to 199. 100 to 199, we have 100 whole numbers. How many ones does he write exactly 2 times? Exactly 2 times. Okay. चलो देखो 100 अगर वो लिखता है, अगर वो 100 लिख रहा है तो क्या उसमें 2 ones हैं? Exactly नहीं है। तो नेक्स्ट वन कुड बी 101। जब वो 101 लिखता है तो वहाँ पे एक बार तो बन रहा है। फिर अगर वो 102 लिख रहा है, क्या यहाँ पे बन रहा है? 103 लिख रहा है, बन रहा है 104, 105, 109 नहीं बन रहा है, लेकिन 110 पे जब वो जाता है तो क्या ये बन रहा है? हाँ, तो यहाँ तक में कितने बन गए अभी मेरे पास? 2 बारी आ गए, 2 टाइम्स। कौन कौन से? एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट, he would be writing the numbers from 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। यहाँ पे कितनी बारी आ गया? काउंट करो। देखो, एक बारी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9th को मैं क्यों कंसिडर करूँगा? क्या मैं इसे कंसिडर करूँगा? एग्जैक्टली 2 टाइम्स बोला है, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं आपको, एटलीस्ट नहीं बोला है। एटलीस्ट बोला रहता तो मैं उसे भी कंसिडर कर लेता, बट यहाँ पे मुझे कितने दिख रहे हैं? हियर वी हैव 8, सो दिस इज 8 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस वुड बी फ्रॉम 121, 122, 123 गोइंग अप टू 130। आप बताओ इन केसेस में कहाँ पे 2 बारी एग्जैक्टली 1 आएगा? सिर्फ पहले बार में, तो दिस इज अगेन 1 टाइम। ओके, इफ यू राइट 131, 132, 133, यहाँ से भी मैं अगर 140 तक जाऊँ तो भी कितनी बारी आएगा? सिर्फ एक बारी आएगा, हाँ या ना? नाउ यू हैव अ रफ आइडिया व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो
तो मैं अगर बात करूँ यहाँ से 141, 151, 161, 171, 181, 191, फिर 121 तो मैं जा ही नहीं सकता। तो कितनी बार और हो गए, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर मैं इन दोनों को भी कंसिडर कर लूँ तो ये अगेन 8 टाइम्स और हो गए। तो इन टोटल कितनी बारी हो गए। हाँ, ये काउंटिंग मेथड से ही होते हैं। अगर आपको इनको सॉल्व करना, और ये आराम से आप विजुअलाइज कर सकते हो कि क्या चल रहा है, इतनी बारी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, यू कैन ईजिली काउंट। So this is 8 plus 2 plus 8, which is in total it is happening 18 times, which is there in option number D. Clear? चलिए 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई फील अभी तक आप लोग अच्छे से मार्क कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो और ध्यान से खुद से अटेम्प्ट ले रहे हो, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। चलो मूविंग फॉरवर्ड स्टार्टिंग विद द 11th क्वेश्चन। देखो सिर्फ 20 क्वेश्चंस का सेट है, सो आई रिक्वेस्ट कि आप एक्टिव हो जाओ और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्व दिस। विनीत डिपॉजिटेड ₹15,600 in a fixed deposit at SI rate of interest 10%. After every second year, he converts his interest earning into deposits. Okay. इनिशियल डिपॉजिट कितने कर रहा है ये 15,600। तो SI क्या होगा फॉर 2 years, PRT upon 100. So this is simple interest is equal to principal 15600 into rate of interest 10 into time period 2 upon 100, क्योंकि हर 2 साल के बाद जितने भी इंटरेस्ट वो जनरेट कर रहा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है, आफ्टर एवरी 2 years, मतलब 2 सालों में जितने इंटरेस्ट जमा हुए वो इंटरेस्ट वैल्यू को निकालता है और डिपॉजिट कर देता है। दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। तो यार 10101010 कट गया, कितने बनेंगे 156 इंटू 2 विच इज 3120। इतने इसके इंटरेस्ट बने। अब ये क्या करेगा, इस इंटरेस्ट को बाहर निकालेगा और जो इसके पास प्रिंसिपल था उस पे ये ऐड कर देगा। तो कितने बन जाएंगे 15600 प्लस 3120 ऐड कर दो, कितने बन गए 18720। अब हिज इंटरेस्ट इन द 4th ईयर, तो यार 2 साल तो हो चुके हैं, अब इस वैल्यू पे और 2 साल के लिए इंटरेस्ट लग रहा है 10% के रेट पे। तो चलो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सिंपल इंटरेस्ट 18720 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। 101010 कट गए, कितने बन गए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 3744। दिस इज द इंटरेस्ट जनरेटेड एट द एंड ऑफ द 4 years। 3744, ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। क्लियर है? चलो मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, a mixture of 140 L of wine, 140 liters of wine and water contains 20% water। चलो मैं यहाँ पे अगर रुकता हूँ क्वेश्चन के, 20% इसमें वाटर है, तो 140 लीटर्स अगर मिक्सचर है तो इसमें वाटर है 20% और इसमें 80% है वाइन। 20% ऑफ दिस, देखो 10% होता है 14, 20% हो जाएगा 28। तो ये कितने बन जाएंगे 28 लीटर्स। 28 लीटर्स इनमें से हटा दो तो वाइन कितने बन गए 112 लीटर्स। यहाँ तक मुझे बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया इस 140 लीटर्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक वाटर 84% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। एक मैं अब नया मिक्सचर बना रहा हूँ, इट्स अ न्यू मिक्सचर। मान लो इस तरीके से, ये जो नया मिक्सचर बन रहा है ये ओल्ड मिक्सचर था 140 लीटर्स का। इस नए मिक्सचर में मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ये कब बन रहा है, जब मैं इसमें ही पानी ऐड कर रहा हूँ। ये नया कब बन रहा है, जब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ पानी। क्लियर है? अब ये क्या बन जा रहा है, टू मेक 84% ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर एज वाटर। ओके, तो इसमें
अगर ये 100% मिक्सचर है तो इसमें वाइन कितने हैं? वाइन वुड बी 16% एंड वाटर वुड बी 84%. ओके, 16% वाइन किसके बराबर है? इस वैल्यू के बराबर है. तो या तो मैं 16% बोलूँ या फिर मैं डायरेक्टली 112 लीटर्स बोलूँ, एक ही बात है. 16% की वैल्यू है 112, तो 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 112/16 इंटू 100. 8 से कट करो 2 टाइम्स, 8 से कट करो 1 और 4, फिर 7. 100% की वैल्यू है 700 लीटर्स. आपको क्या करना है? 700 लीटर्स में 84% की वैल्यू निकाल लो और 700 लीटर्स में से 112 माइनस कर दो, तो दिस वुड बी 588 लीटर्स ऑफ वाटर. क्लियर? क्या करा हमने? क्लियर है? ऑल राइट एवरीवन. चलो, खुद से ट्राई कर रहे हो या नहीं? खुद से भी ट्राई करते चलो यार, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ध्यान दो. देखो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत अच्छा. अगर आप अभी तक बने हुए हो बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट, P इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5. ये देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द डिविजिबिलिटी रूल बेसिक, बट है तो ये मोस्टली प्राइम नंबर से बेस्ड क्वेश्चन. ग्रेटर देन 5. प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. और प्राइम नंबर्स अगर मैं लिखूं तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 1 इज नीदर प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, है ना. बोला जा रहा है P इज अ प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5 जितने हैं सारे, सब पे बात हो रही है. व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन P इज डिवाइडेड बाई 6? देखो देयर इज अ रूल विच सेज, आप इसे अभी रिलेट भी कर लोगे. एनी प्राइम नंबर greater than 5 is in the form 6n plus minus 1. हमेशा देख लो. लेट्स टॉक अबाउट एनी नंबर. लेट्स से 7. तो 7 इज 6 इंटू 1 प्लस 1. 11, 6 इंटू 2 12 माइनस 1. 13, 12 प्लस 1. 17, 6 इंटू 3 माइनस 1. 19, 6 इंटू 3 प्लस 1. 23, 6 इंटू 4 माइनस 1. 29 is 6 into 5 minus 1. 31 is 6 into 5 plus 1. So any prime number which is greater than 5 will always be in this form 6n plus minus 1. 6n plus minus 1. आप बताओ, अगर आप किसी भी नंबर इसको 6 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके लिए रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 1 बचेगा या फिर 5 बचेगा. क्लियर है? ऑप्शन सी. लेकिन ये रूल ध्यान में रखना, ये काफ़ी हेल्पफुल रूल है. ऑल राइट, चलो टेल मी क्विकली विच इज़ द फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर? द फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4. ये ध्यान रखना. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये भी ध्यान रखना. नेक्स्ट, A, B and C are moving on a circular track. A, who is the only one moving in the anti-clockwise direction and moves with a speed twice of that of B and thrice of that of C, takes 10 seconds to cover the entire track. चलो, A, B और C, इनके लिए स्पीड्स कितनी गिवन है? स्पीड तो नहीं गिवन है, टाइम गिवन है. कितना? A takes 10 seconds तो B को कितना टाइम लगना चाहिए? B moves with a speed twice that, अच्छा A is moving with a speed twice that of B और इसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो B को 20 लगने चाहिए और C को 3 लगने चाहिए, 30. क्योंकि A इसके डबल स्पीड से काम कर रहा है तो जल्दी कर लेगा और C के ट्रिपल स्पीड से काम कर रहा है तो बाई 3/2. देख लो A की वैल्यू आ रही है. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द टाइम. टाइम आ गया है.
अब मैंने क्या बोला था आपको, एलसीएम निकाल लो, जल्दी से फाइंड आउट करो एलसीएम फॉर 10, 20 एंड 30। तो क्वाइट विजिबल है, इट इज़ 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स पे वो पहली बार मिलेंगे। आपसे पूछा क्या है, दे वुड मीट फॉर द सेकेंड टाइम। तो फर्स्ट मीटिंग है एट 60, सेकेंड मीटिंग नेचुरली कब होगी, मल्टीपल ऑफ 60 विच इज़ 120 सेकेंड्स। डू वी हैव 120 सेकेंड्स एज द आंसर? यस, इट इज़ देयर इन ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट मीटिंग 60 सेकेंड, पूछा है सेकेंड मीटिंग तो 120 सेकेंड्स। मूविंग फॉरवर्ड, अ थीफ ब्रेक्स अवे फ्रॉम प्रिजन एट 3 AM और अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है कि चोर भाग चुका है। पुलिस ऑफिशियल एट ड्यूटी रियलाइजेज इट एट 6 AM, 3 घंटे के बाद, एंड स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ। The speed of the thief is 45 kilometers per hour, while that of the police is 60 kilometers per hour. At what time police official caught the thief? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करने हैं, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस। इनको करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं सबसे बेसिक वाला जो मेथड है, जो लॉजिकल अप्रोच से काम करेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। 3 बजे थीफ भाग चुका है और ये 6 बजे रियलाइज होता है, तो वो 3 घंटों के लिए तो भाग ही रहा है, आगे भी भाग रहा है, 6 बजे के बाद भी वो भाग ही रहा है, वो रुका नहीं है। लेकिन ये 3 घंटों में मान लो चोर और पुलिस यहाँ पे थे, बिकॉज प्रिजन में दोनों एक साथ थे, 3 घंटों में कितना आगे चला जाएगा ये, 45 × 3 विच इज़ 135 किलोमीटर्स। तो अब ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, ये 135 किलोमीटर्स का है। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन या रिलेटिव स्पीड चेजिंग ओवर के केसेस में क्या होता है, S1 माइनस S2 विच एवर वन इज ग्रेटर। ऑब्वियसली अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है, मान लो पुलिस की स्पीड अभी 45 होती और थीफ की स्पीड है 60, तो क्या पुलिस कभी भी इसे ओवरटेक कर पाएगा? नहीं ना। अगर इसकी स्पीड जो गिवन है 60 और इसकी 45, तो ये आगे चल के कभी ना कभी ओवरटेक कर लेगा। मतलब क्या है इसका समझना, पुलिस जा रहा है 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, तो एवरी आवर पुलिस इज कवरिंग 60 किलोमीटर्स, लेकिन उसी टाइम पे चोर कवर करेगा 45। तो एवरी टाइम पुलिस इज कवरिंग, एवरी आवर पुलिस कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, करते 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 उससे इस गैप को बस ज़ीरो कर देना है। ये जो 135 किलोमीटर्स का गैप है, इसे उसे ज़ीरो करना है। तो इसके लिए तरीका क्या बनता है, सिंपल सी बात है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस है 135 किलोमीटर्स, टाइम स्पीड बनेगा 60 माइनस 45 विच इज़ 15, 135 अपॉन 15 कैंसिल कर दो, कितने से जाएगा, 9 टाइम्स। सो दिस इज आफ्टर 9 आवर्स। 9 आवर्स कहाँ से, 6 AM से, क्योंकि 6 AM पे ये लोग यहाँ पे हैं। 6 AM से 9 आवर्स जाओगे आगे तो इट वुड बी 3 PM। एक्चुअल टाइम क्या बनेगा आपके लिए, 3 PM। 6 AM प्लस 9 आवर्स इट इज 3 PM। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट। क्लियर है। सेम डायरेक्शन में अगर, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ये लोग आ रहे होते तो रिलेटिव स्पीड वुड हैव बीन S1 प्लस S2, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट्स अ केस ऑफ क्रॉसिंग ओवर और इट्स अ केस ऑफ ओवरटेकिंग। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं माइनस करता हूँ स्पीड को। चलो नेक्स्ट, X income is 25% more than Y and Y's income is 20% more than Z। चलो देखते हैं, परसेंटेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये। यहाँ पे Z से रिलेटेड है Y, तो लेट Z's इनकम बी 100N। ये बता दिया है, परसेंटेज के केस में आप अपने वैल्यूज़ को 100 के मल्टीपल में अज्यूम करो विद द हेल्प ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। क्योंकि हर बारी आप 10%, 20%, 35% कुछ भी करोगे तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर कुछ बचेगा नहीं। तो Z's इनकम भी 100, तो Y की इनकम कितना है, 20 इससे ज़्यादा है, तो Y की इनकम कितनी बन जाएगी, 20% इससे ज़्यादा,
तो 20% की वैल्यू कितनी होती है बताना। 20% इज इक्वल टू 20/100 इंटू 100n। तो ये 20n ज़्यादा है, तो वाइज इनकम कितनी बन जाएगी, z plus 20, so it is 100n plus 20n which is 120n। तो अभी तो मैंने लिख भी दिया, लेकिन ये इतनी बेसिक चीज़ है कि आपको ये लिखना नहीं होता है। जब भी आप इसे देख रहे हो तो आपको लिखना नहीं होगा इन चीज़ों को। क्लियर है? नेक्स्ट, x इनकम इज हाउ मच। x इनकम भी 25% मोर देन y, तो 25/100 इंटू वाई विच इज़ 120n। 25 4 टाइम्स और ये 30n, तो 120n प्लस 30n विच इज़ 150n। अब तीनों के लिए आपके पास रेस्पेक्टिव इनकम्स आ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है विच इज़ हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस। व्हाट परसेंटेज इज एक्स इनकम मोर देन जेड। देखो इनमें कीवर्ड गिवन है मुझे देन के बाद क्या आ रहा है जेड, तो वॉट एवर कम्स आफ्टर दैट परसेंटेज कैलकुलेशन इसी चीज़ पे तो बेस्ड है। परसेंटेज कैलकुलेशन में मुझे एक न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए, मल्टीप्लाइंग दिस विथ 100। डिनोमिनेटर वही बनता है जो कीवर्ड के बाद आता है। कीवर्ड के बाद मुझे दिख रहा है कि z है, तो z बन गया मेरे लिए डिनोमिनेटर, इंटू 100 आ गया। और यहाँ पे आ रहा है x इनकम इज मोर, तो x मोर देन z। x कितना ज़्यादा है z से, 50n ज़्यादा है। z की इनकम क्या है, 100n इंटू 100, तो ये 2 और ये 100/2 विच इज़ 50%। ऑप्शन सी करेक्ट फिट है। क्लियर? ये तरीका है इसको करने का, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दी है। ये आप बहुत जल्दी शायद बिना पेन एंड पेपर के भी बना सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन है अगर आप चीज़ों को पहले से फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वन। How many kgs of sugar costing rupees 6.10 per kg must be mixed with 125 kg of sugar costing rupees 2.85 per kg so that 20% may be gained by selling the mixture of rupees 4.80 per kg। देखो इसमें यार मिक्सचर्स पे है, मिक्सचर्स के क्वेश्चन है और ये मिक्स्ड है विद प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे बात कर लेते हैं अपने लोग। एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला नहीं यार, ये रिलेशन है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है अगर प्रॉफिट के केस में, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस p/100 इंटू SP। तो SP क्या बन जाएगा यहाँ से, SP वुड बी 100/100 प्लस p इंटू द कॉस्ट प्राइस, है ना? सोच के देखो, जल्दी बोलो। क्लियर है? अच्छा, मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग प्राइस गिवन है तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। यार ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है कि जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट पे बेचोगे तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा रिकवर कर रहे हो, तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा जो भी रिकवर करते हो वो प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस p/100 इंटू द कॉस्ट प्राइस इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस। ये ध्यान में रखो। और पता नहीं ध्यान कहाँ चल रहा है, मैं भी उल्टा लिखते चल रहा हूँ। चलो ध्यान दो। ये तो एक चीज़ें हो गई। दूसरा मैं एलिगेशन पे बात करूँगा। यहाँ पे एलिगेशन क्या है आपको पता है, बटरफ्लाई डायग्राम। तो आपने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स बना लेने हैं। ऑलराइट, अब आप इनमें लिख दो क्या क्या वैल्यूज़ हैं। 2.85, यहाँ पे 6.10 और ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर मुझे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ये दो डेटा को यूज़ करके। क्या है डेटा, देखो 4.80 इज़ द सेलिंग प्राइस
दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 20, 120 बाई 100 इंटू द कॉस्ट प्राइस। इससे ये पॉइंट हटा दो, 100 आ गया, ये 100 कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 12 4 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 4 रुपये, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे बस इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। 6.10 माइनस 4 इज 2.10, 4 माइनस 2.85 इज 1.15, तो क्या बन गया, इनको जल्दी से सॉल्व करो। 2.10 इज टू 1.15, सॉल्व कर लेते हैं इसे जल्दी से। 210 अपॉन 115, 5 से काटो यार जल्दी, 42 और ये 23, तो ये रेशियो बन जाएगा 42:23। ये रेशियो किसको डिनोट कर रहा है, वेट को डिनोट कर रहा है, 42 ऑफ दिस, 23 पार्ट्स ऑफ दिस। और एक चीज़ बोली जा रही है 125 kg ऑफ 2.5, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2.5 के लिए 42, तो नेचुरली 42 यूनिट्स इज इक्वल टू 125 kg। मुझे फाइंड आउट करना है दूसरे वाले का, तो 23 यूनिट्स कितने के बराबर होना चाहिए, तो 23 यूनिट्स बराबर होने चाहिए 125/42 इंटू 23। यार एक बार ही सोच के देख, 42 यूनिट्स बराबर है 125 के, तो इसका आधा कितना होता है 21 यूनिट्स कितने के बराबर हो जाएगा 125 का आधा, विच इज 62.5, और ये 23 यूनिट है, तो एक यूनिट नॉर्मली कितने के बराबर 3 पॉइंट समथिंग के बराबर हो रहा है, तो 62 से ऊपर 3 बारी, 3 3 6, मुझे 69 एक वैल्यू दिख रहा है। और अगर आप इसे भी सॉल्व करोगे तो ये रफली 69 kgs के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फिट। मतलब इन वैल्यूज को आप रिलेट करा सकते हो। ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का बटरफ्लाई डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। LCM of two distinct natural numbers is 211. What is their HCF? तो एक फॉर्मूला है जो दो नंबर्स को और उनके HCF और उनके LCM को रिलेट करता है। नंबर 1 इंटू नंबर 2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM। ये रिलेशन बनता है। चलो अब मैं देखता हूँ कि क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज, किस तरीके से मुझे इनको देखना है। देयर LCM इज 211, द नंबर इज 211। देखो क्या ये एक प्राइम नंबर है, कैन दिस बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n प्लस माइनस 1। चेक करते हैं, 6 से डिवाइड कर दो इसे, 6 से डिवाइड करोगे तो 1831, यस इट इज इन दिस फॉर्म। तो कहीं ना कहीं मुझे श्योरिटी मिल जा रही ये प्राइम नंबर है। अगर ये एक प्राइम नंबर है तो नेचुरली इसका HCF 1 बनेगा। ये अगर मान लो 211 है तो कैसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट 211 के बराबर हो सकता है। अगर मान लो कोई भी एक नंबर 211 है तो दूसरे वैल्यू को 1 होना पड़ेगा और इनके लिए HCF भी 1 आ जाएगा। तो व्हाट इज देयर HCF? द HCF इज 1। सो दीज आर अ पेयर ऑफ, अगर मैं इन दो नंबर्स की बात करूं एज अ होल तो ये लोग आपस में को प्राइम है। को प्राइम कभी भी सिंगल नंबर नहीं होता है। हु इज योर को वर्कर? थिंक ऑफ इट, आपका को वर्कर कौन है? तो आपके साथ जो को वर्कर है मैं उसकी बात कर रहा हूं ना, मैं शायद वो मेरा को वर्कर नहीं होगा, राइट? तो मैं इंडिविजुअली किसी को भी को वर्कर नहीं बोल सकता हूं। इट इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू सम अदर पर्सन। जैसे 1 और 211 एक को प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी आपस में को प्राइम है, लेकिन 2 और 4 आपस में को प्राइम नहीं है। 2 3 के साथ जब आता है तो वो को प्राइम है, 2 4 के साथ जब आएगा तो वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर मोर देन 1 आ जा रहा है। को प्राइम वैल्यूज, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव ओनली कॉमन फैक्टर एज 1। दो नंबर्स का अगर ओनली कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, मतलब उनका HCF 1 आ रहा है, तभी वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट 2 क्वेश्चंस। अभी तक कितने सही हुए तुम्हारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Let's see what can be done here.
we have x square plus px plus 12 is equal to 0 is one root of the equation is 4 while there is another equation which has equal roots, then what is the value of q? q यहाँ पे फंसा हुआ है. चलो देखते हैं. रूट्स पे जब मैं बात करता हूँ तो वी हैव टू फॉर्मूलाज हियर, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. और अगर ये रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, मान लो कुछ भी मान सकते हो, ए भी मान लो, कुछ भी, तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए. और ए बी और सी क्या है यहाँ पे? फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ए बी सी इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू 12. और प्रोडक्ट बनेगा सी अपॉन ए. चलो अल्फा की वैल्यू मान लो गिवन है एज 4, एक वैल्यू तो गिवन है, तो आप सम कैसे लिख सकते हो? सम कैन बी रिटन एज 4 प्लस बीटा और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी अपॉन 1. नेक्स्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए. सी की वैल्यू 12, ए की वैल्यू है 1, तो मैं इसे 12 ही लिख रहा हूँ. क्या मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूँ एज 3, पुटिंग 3 हियर, व्हाट डू वी हैव? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस p, therefore p is equal to minus 7. Now next important part, नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0. और इसके केस में ए बी और सी क्या आ रहे हैं ये भी लिख लो. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू p और सी की वैल्यू q. चलो बोला जा रहा है इट हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू 0. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी इक्वल टू 0. इस केस में बी स्क्वायर क्या बन रहा है? बी स्क्वायर बन रहा है पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी विच इज क्यू. पी की वैल्यू कितनी है? माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4q, दिस इज इक्वल टू 0. 49 minus 4q is equal to 0. q is equal to 49 upon 4. Do we have this as one of the option? Yes. Option number C इसका करेक्ट आंसर है. चलो नेक्स्ट जल्दी. लास्ट क्वेश्चन है तो इसको खुद से ट्राई करो और ये एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा एवरेज का क्वेश्चन है. ट्राई करते हैं. द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ड्रॉप्ड फ्रॉम 65 to 62 kgs व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 77 kgs वाज आउट ऑफ द क्लास. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ? जब एक बच्चा छोड़ देता है तो अब कितने बच रहे हैं? तो इनिशियली मान लो देयर आर n स्टूडेंट्स इनिशियली. एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर. यहाँ से अगर मैं एवरेज इनटू नंबर कर दूं तो ये सम के बराबर आ जाता है. चलो इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं जल्दी से. इनिशियली मेरा एवरेज था 65, तो 65 और नंबर था n, ठीक है. इसमें से 77 kg वाले लड़के को अगर मैं हटा दूं तो अब मेरे पास कितने वैल्यूज बचे? मेरे पास n में से एक वैल्यू कम बचा, और अगर मैं इसको एवरेज ले लूँ तो ये बन जाएगा 62 के बराबर. बस इक्वेशन बन गया, सॉल्व कर दो. 65n माइनस 77 इज इक्वल टू 62n माइनस 62. 65n माइनस 62n इज इक्वल टू 77 माइनस 62. 3n is equal to 15, therefore n is equal to 5. क्या पूछा आपसे? n की वैल्यू पूछी. इनिशियल स्टूडेंट्स नहीं, नाउ अभी कितने बच्चे हैं? तो टोटल -1 which is 5 minus 1 which is 4. ऑप्शन बी इज द करेक्ट फिट. इस क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व करना चाहो तो या तो इस मेथड से कर लो या फिर मेथड नंबर 2 विच इज़ द डेविएशन मेथड, उससे सॉल्व भी कर सकते हो. क्या बनेगा वो? द एक्सक्लूडेड बॉडी और द इंक्लूडेड बॉडी, दो चेंज्ड बॉडी होता है, एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड. उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है? एक्सक्लूडेड बॉडी विल बी इक्वल टू इनिशियल एवरेज
प्लस जो चेंज कर रहा है ये प्लस समथिंग एक्स्ट्रा। चलो एक्सक्लूडेड बॉडी के लिए कितना वेट है 77, इनिशियल एवरेज है 65, और जब ये जाता है तो कितने लोग बच रहे हैं, जब ये जाता है तो n-1 लोग बच रहे हैं। मान लो n थे टोटल, तो n-1 पीपल के वेट को ये 3 kg से चेंज कर देता है, तो इंटू 3 क्या बन गया है 77 इज इक्वल टू 65 प्लस 3n-3। 65 माइनस 3 इज 62, तो 3n की वैल्यू बन गई यहाँ पे 77 माइनस 62। फिर से सेम इक्वेशन आ गया, 3n इज इक्वल टू 15, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5 आ गई, n-1 की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से भी क्लियर है। चलो यार, ये तुम्हारे लिए एक एक सेट्स अभी हो चुके हैं LR के, QA के। अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करो। वी विल बी अपलोडिंग फ्यू मोर सेट्स ऑन दिस सो दैट आपके लिए प्रिपरेशन थोड़ी सी ईजी बन जाए। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।